ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। We had constructive discussions on strengthening our strategic cooperation in the sectors of mining and critical minerals. We identified concrete areas for cooperation and in renewable energy sector. We have decided to set up a task force on green hydrogen. Yesterday, I had useful discussions with Australian CEOs on investments in different areas. And in Business Roundtable today, I will discuss cooperation in trade, investment and technology. आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। Today, we signed the Migration and Mobility Partnership Agreement. This will further strengthen our living bridge. As I announced yesterday, for our continued deepening relationship, we will soon open a new Indian consulate in Brisbane, just as Australia has announced opening a new consulate in Bengaluru. फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। Friends, Prime Minister Albanese and I have in the past discussed the issue of attack on temples in Australia and activities of separatist elements. We discussed the matter today also again. We will not accept any elements that harm the friendly and warm ties between India and Australia by their actions or thoughts. I thank Prime Minister for the actions that have already been taken. Prime Minister Albanese has once again assured me today that he will take strict actions against such elements in the future also. फ्रेंड्स, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल हमारे दो देशों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ हिरोशिमा में क्वाड समिट में हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। Friends, the scope of India-Australia ties is not limited to merely our two countries. It is also linked to regional stability, peace and global welfare. A few days ago, in Quad Summit in Hiroshima with Prime Minister, we discussed Indo-Pacific issues. भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है, भारत की G20 प्रेसिडेंसी का मूल मंत्र है। G20 में हमारे इनिशिएटिव्स पर ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। India-Australia cooperation can be beneficial for the growth of Global South also. The Indian tradition of Vasudhaiv Kutumbakam that views the entire world as one family
is the central theme of India's G20 presidency. I thank Prime Minister Albanese from the bottom of my heart for Australia's cooperation for our G20 initiatives. फ्रेंड्स, इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। Friends, I invite Prime Minister Albanese and all Australian cricket fans to India for the Cricket World Cup this year. At that time, you will also get to see the grand celebrations of Diwali in India. एक्सेलेंसी, इस साल सितंबर में G20 समिट के लिए आपका फिर से भारत में स्वागत करने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Excellency, I am excited to welcome you again in India for the G20 summit in September this year. Once again, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. प्रधानमंत्री वैश्विक पहलुओं पर साथ साथ राष्ट्रीय पहलुओं पर बोलते नजर आए। प्रधानमंत्री सिडनी में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने नई रिश्तों की उड़ान की व्याख्या करी है। अल्बनीज बोले मोदी इज द बॉस और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अल्बनीज का स्वागत किया, उनका अभिनंदन करते हुए नजर आए। G20 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा उसको एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है। साथ में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाले क्रिकेट मैचेस को लेकर के भी उन्होंने क्रिकेट के फैंस को भारत आमंत्रित किया और साथ में ये भी कहा कि जिस दौरान आप भारतीय भूमि पर पहुंचेंगे क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए, उस दौरान आप दिवाली की चमक, वहां की शोभा को भी देख पाएंगे। तमाम तरह के पहलुओं पर प्रधानमंत्री इस दौरान बोलते नजर आए। उन्होंने वैश्विक मंच पर ट्रेड को लेकर के भी बातचीत करी है, सहयोग को लेकर बातचीत करी, एंटरटेनमेंट को लेकर बातचीत करी। सिडनी में भी मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद थे। साथ में जो मेगा शो हुआ उसमें सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, मोदी मोदी। इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाइए कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट हैं अल्बनीज, उन्होंने बोला मोदी इज द बॉस। और साथ में प्रधानमंत्री ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मंदिरों पर हमले हो रहे हैं उसको भी कोट किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों पर हमले स्वीकार्य नहीं है किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में मंदिरों पर हमले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देख रहे हैं, आज भारत लौटेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सिडनी का दौरा काफी अहम, जहां पर व्यापारिक मुद्दों को लेकर बातचीत, आपसी संबंधों को और कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में और बेहतर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जब आपने देखा होगा तस्वीरें, जब पीएम नरेंद्र मोदी सिडनी में उतरे तो किस तरह से भारतीय संस्कृति की तरफ उनका वहां पर स्वागत किया गया, उसी तरह की परंपराएं वहां पर नजर आई। और कल की तस्वीरें बेहद अद्भुत दिखाई दी जब पीएम नरेंद्र मोदी सिडनी में 20,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित किए। वहां के लोग काफी उत्साहित भी नजर आए। बिल्कुल। और सागर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों को कोड किया है
वो अपने आप में दर्शाता है कि भारत की प्राथमिकताओं में जो धर्म है वो भी ऊपर है और हम उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज भारत लौट आएंगे प्रधानमंत्री, और भारत लौटने से पहले जो प्रधानमंत्री का ये संबोधन है वो बेहद खास, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई, और जिस तरीके से अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उनको कहा मोदी इज द बॉस, वो भारत की भूमिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को रेखांकित करता है।